Hello everyone, I am Dr. Heath Manwar and welcome to my YouTube channel. And many of you are asking me that कि मैंने इंटर्नशिप के साथ नीट पीजी या आईएनआई की प्रिपरेशन कैसे मैनेज की। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड दिस वीडियो इज मेंट फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर इंटर्नशिप और गोइंग टू स्टार्ट देयर इंटर्नशिप इन अपकमिंग मंथ्स एंड जो लोग नीट पीजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आर गोइंग टू गिव नीट पीजी इन नेक्स्ट 20 days. This video is not for them, so don't waste your time and good luck. So let's dive deep into it. So as you must be aware that from psychiatry I have taken this 5 stages of grief, in which we go through these phases, and at the end when we accept the grief, we are happy and satisfied with ourselves. So for most of us internship is like a grief कि बहुत काम करना पड़ेगा, एक साल के बाद एग्जाम भी है, कैसे मैनेज करूँगा. तो we will go through these phases. We will be angry, we will be bargaining with the God के भगवान अच्छा यूनिट दे दो, काम कम करना हो ऐसा दे दो. बट एट द एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि वी शुड एक्सेप्ट इट. इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, it is part of our medical education, and it is part of our course, and it is our duty to do internship. We will learn things from it, so accept it कि it is our duty और हमें ये करना है. और इसके साथ साथ हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम भी अच्छी तरह से देना है. तो accept it, because being anger or being depressed will create a negative psychological impact, and of course negative psychological impact has a correlation with your cognitive capacity. So if you are happy, if you are confident in yourself, then it is definitely going to help you in the long run. So accept it that it is our duty and go along with it. So let's dive into this strategic part, because ये तो motivation वाला part हो गया, but you are here to know my strategies. So let's discuss about that. First thing is use your sources wisely, and by that I mean कि है ना, तुम जो भी सोर्स यूज कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो. if I've used something, then you need to use it to get AIR1. That is not true. Essentially 90% of all sources are the same things. तो जो भी सोर्स आपने MBBS के टाइम यूज किया है उसे यूज करते रहो. और इंटर्नशिप के फेज में प्लीज डोंट स्विच योर सोर्सेज. एंड हाउ टू यूज योर सोर्सेज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक अगर you want to revise, then revise your notes. That's why we made the notes, or we ordered the pre-made notes. It will help us revising the subject better. Because I have seen many people ki they try to watch the main videos every time they want to revise a subject, because videos is a passive learning tool कि वीडियोस लगा दिया और शांति से रिलैक्स होकर बैठ गए, मजा आया. बट दैट इज नॉट द थिंग टू डू, that is not the right thing to do. Revising notes is a active experience, so that will help retain the subject in a better way, and that will also save your time. So revise your notes, not the videos. Then regarding QBanks, QBanks mein there are more than 15,000 questions. Not every question is equally important. So what should you do? You should focus your attention to PYQs and PYPs, मतलब previous year questions and previous year topics. And PYQs बहुत अच्छे तरह से करने हैं कि you have to read their explanation also thoroughly, even if you know the answer. And you have to read your notes also with respect to PYQs कि जो topics PYQ या PYT है तो उसके नोट्स बहुत अच्छे तरह से पढ़ने हैं. और बाकी के टॉपिक्स में यू कैन हैव सम लेवरेज की थोड़ा याद नहीं रहा है तो चल जाएगा, बट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज विथ PYQs. फिर GTs, if you have not started giving GTs yet, then start it now, because
I feel it is important to give GTs. It is important to assess your preparation. Otherwise you will get a huge shock at the end of 1 year of your internship. So rather than that, start preparing it from now. Start assessing your preparation. And एक सिंपल चीज है कि अगर अपनी मेन जो नीट पीजी या आईएनआई एग्जामिनेशन है उसमें हमारे नंबर कम आए, उससे अच्छा है कि जीटीज में नंबर कम आए और हम थोड़ा उससे मोटिवेट होकर ज्यादा पढ़ लें. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीटीज इज ऑल्सो अ लर्निंग टूल. इट टेस्ट्स यू बट इट ऑल्सो makes you learn something, makes you realize something. So do that. Start giving your GTs. Okay. Next thing, work smart, not hard. What did I do? कि I did something different from most of the people. कि लोग क्या करते हैं कि वॉलेटल टॉपिक्स है या फिर जीटीस के रॉन्ग क्वेश्चंस है, उसकी एक 20th नोटबुक बनाते हैं जिसमें दे विल राइट एवरीथिंग which they are getting wrong or they are forgetting. But मैंने क्या किया कि we are living in the generation of social media and apps and everything. Our generation is tech savvy. तो हमें क्या करना है कि आपके जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो उसमें मस्त टेबल है वॉलेटाइल चीज का. तो why should you make that table again in your notes? Just take a screenshot and make a WhatsApp or Telegram group out of it and save it for a long time, and whenever you want to revise you can revise it. If you are getting one question wrong every time, then take a screenshot and put it in that WhatsApp or Telegram group, right? And we'll discuss these things in details also in the next video, but I'm giving just broad guidelines in this video. Okay. And plan your preparation कि तुम्हें असेस करना है कि तुमने एमबीबीएस में क्या किया है, अगर तुमने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं किया है, वीडियोस देखने बाकी है या नहीं है, क्यू बैंक कितनी की है, एंड बेस्ड ऑन दैट प्लान योर प्रिपरेशन. कि if you have, like me, if you have completed all the videos during your MBBS itself, so you can plan ki I'll revise the whole Q bank and I'll revise the main notes. But if you have not watched the main videos during your MBBS, then you should focus more. You should be more focused on the revision notes. Ki now in the 1 year it is slightly tough to complete all the main videos and their notes. तो उसके वजह you should directly watch the revision videos and prepare from its notes. So this is what it is about. Okay, so now let's talk about how can you utilize your time wisely during your hectic days and during your light internship duties days. So first let's talk about the hectic days. हेक्टिक डेज पे क्या होता है कि अगर तुम्हारी इमरजेंसी है, यू हैव डन लाइक 12 आवर्स और 24 आवर्स ड्यूटी, एंड आफ्टर द ड्यूटी यू फील यू आर वेरी टायर्ड एंड यू वोंट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग. तो आई विल से कि जस्ट सो जाओ. अगर इफ यू आर इन दैट सिचुएशन कि यू आर वेरी टायर्ड और अगर तुम कुछ पढ़ोगे तो भी याद नहीं रहेगा, तो फिर कुछ मतलब नहीं है पढ़ के. कि यू आर जस्ट पुटिंग नंबर्स आउट देयर कि मैंने ड्यूटी के बाद भी 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ा, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. वी शुड स्टडी एंड वी शुड एनालाइज आवर प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट रादर देन आवर्स. कि आई डोंट जज माई प्रिपरेशन कि मैंने 6 घंटे पढ़ा, मैंने 8 घंटे पढ़ा. आई जज माई प्रिपरेशन कि आई स्टडीड दिस thing and after that my score improved from this to this. So do that. Okay, and don't overburden yourself. Hectic day hai, after the duty so jao, but during your duties how can you manage your time nicely? तो इन बिटवीन योर इमरजेंसीज के एक पेशेंट आ गया, उसका सैम्पलिंग हो गया, एंड देन यू हैव सम टाइम एंड अदर पेशेंट हैज नॉट येट कम. तो इन बिटवीन दोस hectic time you can solve a QBank module, or you can make a custom module of your choice and solve that, and you will get a feeling of satisfaction कि आज मैंने 50 क्वेश्चंस किए, तो मैंने ड्यूटी में से भी कुछ टाइम निकाल दिया और
इतना सॉल्व भी हो गया। फिर क्या करना है कि अगर यू आर गोइंग टू द ब्लड बैंक और पैथोलॉजी और बायोकेम डिपार्टमेंट, तो चलते चलते भी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस while doing this stuff. And you can also review your GTs. As I've said in the interview कि मैं अपनी GTs 2 वीक तक रिव्यू करता था, तो मैं ऐसे टाइम यूटिलाइज करता था 2 वीक में कि इन बिटवीन माई ड्यूटीज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं GTs रिव्यू करता रहता था। तो इस तरह 2 वीक तक मेरा रिव्यू चलता था, पर मैं GT को बहुत अच्छे तरह से रिव्यू कर पाता था कि आई यूज टू मेक ब्लॉक्स ऑफ 20 क्वेश्चन, कि रोज 20 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं, पर थरली एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, क्योंकि GTs में जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली PYQs से बेस्ड होते हैं। तो ऐसे थरली पढ़ता था और इस तरह मैं 2 वीक्स लगाता था, और इन बिटवीन माई ड्यूटीज आई यूज टू डू दैट। फिर मैंने जो बताया कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, उसमें नोट्स डाल देनी है, स्क्रीनशॉट डाल देना है, वो भी तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि मेन नोट्स या रिवीजन नोट्स में तो पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में होता है, तो वो तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि तुम कुछ चीज़ भूल जा रहे हो तो वो स्पेसिफिकली तुमने हाईलाइट करके डाल दिया है अगर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो तुम जब भी व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे या अपने किसी कलीग्स के साथ भी बात कर रहे होगे, तो तुमको नजर पड़ेगी कि हाँ ये टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, तो लेट मी रिवाइज इट, लेट मी सी इट वंस, और ऐसे स्पेस रिवीजन होते रहेंगे तो यू विल गेट अ बेटर ग्रिप ऑफ दैट टॉपिक ऑल्सो। देन डिस्कस विथ योर कलीग्स, कि कलीग्स के साथ डिस्कस करो, कोई टफ टॉपिक है, कुछ निमोनिक्स बनाओ कि कैसे हम ये याद रख सकते हैं। तो 2-3 इनपुट मिलेंगे तो आई थिंक यू विल गेट एन ब्रॉड आइडिया एंड बेटर आइडिया कि ये टॉपिक को हाँ ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PSC एंड PBC है, उसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स सब कंफ्यूज रहते थे, तो फिर we 4-5 people got together and then we discussed it, and finally we made some mnemonics to remember it, and yeah, now I'm comfortable with that topic. So discussion with your colleagues also helps कि तुम एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि rather than reading something, answering something helps a lot better way to remember something। कि अगर मैं तुम्हें कह दूं कि एक फैक्ट कह दूं कि सपोज XYZ है, उसके वजह मैं पूछूं उसे क्वेश्चन फॉर्म में, देन यू विल यूज योर ब्रेन टू रिकॉल इट, सो इट विल हेल्प यू रिटेन इट बेटर। देन रिगार्डिंग लाइट डेज में क्या करना है, तो लाइट डेज है ना वो गोल्डन डेज है। लाइट डेज में ऐसा नहीं सोचना है कि कल मेरी हेक्टिक ड्यूटी थी, आज मैं फुल चिल करूंगा, फुल आराम करूंगा, रात को फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने जाऊंगा और मजे करूंगा। नहीं, ये नहीं करना है। अगर मजे करने हैं तो हेक्टिक ड्यूटी है, अगर तुम थक गए हो तो इफ यू वांट टू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स तो गो ऑन हेक्टिक डेज। लाइट डेज को तुम अपने लिए रखो, लाइट डेज पे वेस्ट मत करो टाइम, और रीड एटलीस्ट 6 to 8 hours, ओके, एटलीस्ट 6 to 8 hours, एंड when the exam is near you can increase it up to 8 to 10 hours or even 12 hours। लाइट डेज पे दूसरा क्या मेन काम करना है कि तुम्हारी मेन नोट्स या रिवीजन नोट्स है वो रिवाइज करनी है ठीक से बैठ के। फिर क्या करना है, GTs देनी है, और जो मैंने बोला कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप नोट्स है, तो वो बनानी इस दिन है कि नोट्स तुम पढ़ते जाओ, और इफ यू आर फीलिंग दैट दिस टॉपिक इज टफ और दिस टॉपिक इज वॉलेटाइल, तो नोट्स दिखते जाओ एक साइड, और उसमें से फोटो लो या स्क्रीनशॉट लो और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। तो ऐसे यू कैन प्लान फॉर लाइट डेज। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस in detail about how to attempt the how to go for videos and Q banks and GTs during your internship. So this video is already very long, so you will get bored, so we'll discuss about those things in the next video. So thank you for watching, and please do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Bye bye.